ملتان میں تجاوزات کی بھرمار، شہر کے مین شاہراہوں پر ریڑی بانوں کا قبضہ، ٹریفک کی روانی متاثر، راہگیروں اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے تجاوزات کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان میں تجاوزات کی بھرمار ہے، شہر کی مین شاہراہوں پر ریڑی بانوں کا قبضہ، ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہر اولیا میں تجاوزات مافیا کا راج، شہر کی مختلف شاہراہوں پر ریہڑی بانوں کا قبضہ، تجاوزات کے باعث سڑکیں سکڑ گئی، ستھرا پنجاب مہم کے دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے۔ انتظامیہ پہ بہت سارے سکول ہیں اور وہاں بسوں میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں۔ جب یہ ریڑی والوں کی وجہ سے روڈ بلاک ہو جاتا ہے تو کم از کم ایک گھنٹہ روڈ بلاک ہو جاتا ہے۔ ریڑی والوں جب یہ آ جاتے ہیں، ٹریفک جھگڑے وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، انتظامیہ اس کے اندر انتظامیہ ہی ان کو کور کر سکتی ہے، عام شہری کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کوئی سنے، ادھر کوئی سننے والا نہیں ہے، مہربانی کریں۔ ہم بہت ذلیل ہو چکے ہیں اس روڈ پہ، بلکہ پورا ملتان شہر کا یہی حال ہے۔ ہم کس کو فریاد کریں، کس کو جا کے کہیں؟ کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہیں، تجاوزات کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے بڑا آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ خود فیلڈ میں جا کر تجاوزات اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لے رہی ہوں۔ ہماری اس وقت تمام ٹیمز موبلائز ہیں، آپ کے اربن ایریاز میں، آپ کے رورل ایریاز میں، اور الحمدللہ یہاں پہ صفائی کا میں خود بھی ابھی اس کے فوراً بعد بھی میں نے خود بھی شہر کا راؤنڈ لینا ہے، اور اس کو ڈی سی صاحب بھی پرسنلی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں، کراس ڈویژن۔ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے ٹریفک پولیس بھی میدان میں آ گئی۔ ڈی ایس پی ٹریفک پولیس آصف شاہین کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ غیر قانونی تجاوزات کو ختم کیا جا رہا ہے، اضافی نفری تعینات کی ہوئی ہے، شہریوں کو آسانی فراہم کرنا ٹریفک پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس نے اپنی اضافی نفری جو ہے وہ جو رش والے ایریاز ہیں، فار ایگزامپل جیسے چنگی نمبر 6 ہے، حسینہ گئی اور اندرون گھنٹہ گھر وغیرہ کے جو علاقے ہیں، ایم ڈی اے چوک ہے، یہاں پہ ہم نے اضافی نفری جو ہے وہ تعینات کر دی ہے۔ زیر انتظامیہ کہنا ہے کہ صاف ستھرا پنجاب مہم کے تحت تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنائیں گے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر کے ہمراہ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کا راج، سبزیوں اور پھلوں کی مہنگے داموں فروخت جاری۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کے رمضان ریلیف دعوے کھوکھلے نکلے، دکانداروں نے اپنی مرضی کے ریٹ لگا رکھے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں، مہنگائی کے حوالے سے ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کا راج ہے، سبزیوں اور پھلوں کے مہنگے داموں فروخت جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کے رمضان ریلیف دعوے کھوکھلے نکلے۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ مارکیٹ میں لہسن اور ادرک 600 جبکہ سوہانجنا اور بھنڈی 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سرکاری نرخ نامہ میں لہسن 550، ادرک 490، سوہانجنا 210 اور بھنڈی 310 روپے کلو مقرر ہے۔ عام مارکیٹ میں ہری مرچ 320، پیاز 200 اور ٹماٹر 120 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ہری مرچ 124، پیاز 160 اور ٹماٹر 90 روپے کلو مقرر ہیں۔ ٹنڈے 500، مٹر 120 اور آلو 80 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف اقسام کے سیب 240 سے 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ کھجور 600، اسٹرابری 400 اور انار 500 روپے فی کلو برقرار ہیں۔ مارکیٹ میں پپیتا 320، امرود اور خربوزے 200 سے 250 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ کیلا 240 روپے فی درجن دستیاب ہے۔ سرکاری نرخ نامہ میں چکن 577 اور انڈے 271 روپے فی درجن مقرر ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین کامران کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ حکومت کی طرف سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پہلی ساماہی کی استجاری، جنوبی پنجاب میں ریٹیلرز کے بڑے پیمانے پر کھلے عام مالی بے ضابطگیاں سامنے آ گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پہلی سہمائی قسط میں کھلے عام مالی بے ضابطگیاں جاری ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا عملہ اور بینک خاموش تماشائی، مستحق خواتین کو دی جانے والی رقوم سے کھلے عام 1 سے 2,000 روپے کٹوتی کی جانے لگی۔ بہاولپور کے علاقہ شریف آباد میں ریٹیلر سادہ لوہے خواتین سے 2,000 روپے کٹوتی کرنے لگا، جس پر مستحق خواتین سراپا احتجاج ہیں۔ جو روزے کے ساتھ ہے وہ ٹھہری ہوئی ہیں، صبح سے 8:30 بجے کی ہم آئی ہیں، روزے کے ساتھ ذلیل ہو رہے، ہمیں دے نہیں رہے۔ میری امی لے گئی، اس کے 2,000 انہوں نے کاٹے ہیں۔ پہلے کٹوائے تھے 500 کاٹے تھے، جو پہلے آئے تھے 8,500 جب آیا تھا، اب یہ 1,000 روپے فی بندہ کاٹ رہے ہیں، کسی سے 2,000 روپے لے رہے ہیں، کسی سے 1,000 روپے لے رہے ہیں، یہ رشوت لے رہا بندہ بیٹھا۔ مستحق افراد کا کہنا تھا کہ شکایت کے باوجود متعلقہ ریٹیلر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، خواتین کو کٹوتی کے بغیر رقم نہ دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کچھ ریٹیلرز کے ساتھ BISP انتظامیہ بھی مبینہ طور پر ملی ہوئی ہے۔ مشکل کا سامنا یہ کہ عوام آپ کے سامنے کتنی عوام ہے، بہت پریشان ہے۔ ایک تو گورنمنٹ نے چلو پیسے دیے ہیں
तो मैं तो कहता हूँ इनसे ये सिस्टम वापसी ले लिया जाए, वो गवर्नमेंट एक दफ्तर बना देवे जो वो खुद पैसे पे करे और वो रसीद बना के दे, क्योंकि ये तो बहुत पैसे खा रहे हैं। कल 1000 रुपये उन्होंने कटवाया हमारे भी। मुस्तैक़ ख़वातीन ने इंतजामिया से फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इधर मियां चन्नू में रोही की खबर पर असिस्टेंट डायरेक्टर BISP अब्दुर्रहमान का एक्शन। BISP के तहत ख़वातीन को जारी किस्त से कटौती में मुलविस 4 रिटेलर्स की डिवाइसेस ब्लॉक कर दी। एक डिवाइस लंबा में और 3 डिवाइसेस मियां चन्नू में ब्लॉक की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुर्रहमान का कहना था कि ख़वातीन को मिलने वाली रकम में से कटौती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। BISP की रकम ख़वातीन की अमानत है। खयानत करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पिपला तहसील इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी कुंदिया की नाअहली करोड़ों रुपए की मशीनरी खुले आसमान तले पड़ी जंग आलूद हो। पिपला तहसील इंतजामिया और कंदिया म्यूनसिपल कमेटी ने नाअहली की इंतहा कर दी। शक्कर मशीन, ट्रैक्टर ट्रालियां और लोडर्स खुले आसमान तले पड़े जंग आलूद होने लगे। हुकूमती खजानों को करोड़ों रुपए नुकसान का खदशा। आप देखें कि गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया है फैसिल लोगों को सहूलियात देने के लिए, ये जो चीज़ें लाई गई हैं, ये जो मशीनरी लाई गई है, आखिर इसको सेफ भी तो करना था। इसके ऊपर शेड होना चाहिए था जो कि उनके इल्म में है, और सुना भी ये भी है कि उनके शेड का जो है वो कोई पैसे आए भी थे, लेकिन वो कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। शहरियों का कहना था कि साबिक दौरे हुकूमत में शेड्स के लिए फराम किए गए फंड्स कहाँ गए। खुले आसमान तले पड़े मशीनरी स्क्रैप में तब्दील हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं ट्रैक्टर, ट्रालियां, लोडर इसी तरह धूप के अंदर खड़े रहते हैं, और हर तीसरे चौथे माह हमें पता चलता है कि मशीनरी खराब हो चुकी है, टेंडर लग रहे हैं, कभी ट्रैक्टर, कभी शक्कर मशीन, कभी लोडर। तो अगर इसका बर वक्त ये शेड ना बनाया गया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मियां वाली से करोड़ों रुपए की मशीनरी महफूज बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अताउल्लाह शहीन, रोही न्यूज़, पिपला। मुजफ्फरगढ़ की दोनों राब्ता नहरें गुज़िश्ता 6 माह से बंद हैं। किसान कहते हैं कि इन दोनों में गंदम की फसल को पानी की अशद जरूरत है। गंदम जवार को महंगे पेट्रोल और डीजल से पानी देना बहुत महंगा पड़ रहा है। मुजफ्फरगढ़ शहर की दोनों राब्ता नहरें गणेशवा और तलीरी कैनाल गुज़िश्ता 6 माह से बंद हैं। नहरों की बंदिश से जहां आम शहरी परेशान है, वहीं किसानों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में फसलों को पानी लगाने के लिए डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ रहा है। किसानों का कहना था कि इन दिनों में गंदम, जवार, बरसीम और दीगर फसलों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मार्च और अप्रैल में गंदम को 3 पानी लगते हैं। नहरें बंद होने से मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि महंगे पड़ते हैं। 3 पानी में गंदम तैयार होती है, लेकिन एक ही पानी हुआ है। अभी 3 पानी लगाने हैं। पानी का बहुत ही मसला है, इसलिए किसान बहुत परेशान है। डीजल इतना महंगा है ना, सोच से भी ज्यादा। किसानों का मजीद कहना था कि महकमा अनहार से नहरों में पानी छोड़ने की मुतअद्दिद बार दरखास्त कर चुके हैं, मगर अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लेकर मसला हल करवाएं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मैपको इंतजामिया रिकवरी के लिए मुतहरिक। डेरा गाजी खान में अदम अदायगी पर 3 वाटर वर्क्स की बिजली काट दी गई। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। डेरा गाजी खान में मैपको इंतजामिया इन एक्शन। अदम अदायगी पर मेन वाटर वर्क्स, मगरबी वाटर वर्क्स और अजमत वाटर वर्क्स की बिजली काट दी। तीनों वाटर वर्क्स की बंदिश से मुतादिद इलाकों में पानी की सप्लाई बंद हो गई। शहरी कहते हैं कि पानी की बंदिश के बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। वह बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन म्यूनसिपल कारपोरेशन की जानिब से बिल अदा नहीं किया जाता। पानी है नहीं घर में, अगर आता है तो जना का नाम ऐसा नाकारा पानी आता है कि नालियों का, जिसमें वजू भी इंसान नहीं कर सकता, कपड़े नहीं धो सकता। कल परसों से तो वो गंदा पानी भी नहीं आ रहा, जो है ना कि नाम हमें मुहैया हो रहा था वो भी नहीं आ रहा। नमाजियों को बाहर से पानी लेके आना पड़ता है अपने वजू के लिए। मस्जिद में पानी कमी होने की वजह से नमाजी सही तरह से वजू नहीं कर सकते। रमज़ान शरीफ में रोज़े के साथ नमाजियों को तंग होना पड़ता है, बाहर से पानी लेके आना पड़ता है। शहरियों ने म्यूनसिपल कारपोरेशन हुकाम से पानी की सप्लाई फौरी बहाल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ राणा मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बहावलपुर में भी सुथरा पंजाब मुहिम जारी। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इस हवाले से साइकिल रैली का इनेकाद कर दिया है। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सुथरा पंजाब मुहिम के सिलसिला में साइकिल रैली का इनेकाद किया। रैली का बुनियादी मकसद साफ सुथरे सेहतमंद मुआशरे की तश्कील नौ के लिए शहरियों में तहरीक पैदा करना था। मैनेजर ऑपरेशंस BWMC मोहम्मद इम्तियाजुल्लाह की सरबराही में साइकिल रैली कंपनी के मरकजी दफ्तर से शुरू होकर दुबई चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। साइकिल रैली में कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर सैनिटरी वर्कर्स ने सफाई के नारों से मुज़य्यन प्ले कार्ड्स उठाकर शहरियों की तवज्जो इंसानी जिंदगियों पर माहौलियाती आलूदगी के असरात और कूड़ा करकट की वजह से शहर में
बढ़ते अमराज की तरफ मबजूल करवाई। मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद इम्तियाजुल्लाह का इस मौके पर कहना था कि रैली का बुनियादी मकसद कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से तलफ करने के हवाले से शहरियों की किरदार साजी करना है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आ गई बहार, हर सू फूलों की है महकार। मौसम बहार की आमद से हर तरफ रौनक और चहल पहल शुरू हो गई। शहरियों का कहना है कि इस मौसम में आबो हवा इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दायरा दीन पनाह में मौसम बहार के रंग छाने लगे। बहार आते ही रंग बिरंगे फूलों ने माहौल को खूबसूरत बना दिया। शहरी कहते हैं कि हर किस्म के फूल अपनी खुशबू से फिजा को मुअत्तर कर रहे हैं। मौसम बहार का इंसान से गहरा ताल्लुक समझा जाता है। मौसम बहार कायनात का एक अनमोल तोहफा है। इस मौसम में हुस्न जमाल हकीकी मायनों में बेनकाब होता है। खालिक कायनात का हुस्न फूलों में नजर आता है। छोटी छोटी टहनियों पर लगे फूल ताजगी और राहत का एहसास दिला रहे हैं। जमीन पर बिखरे फूलों की कोसे कज़ा को ठंडक पहुंचा रही है। मैं यहाँ पे फूल लेने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बहार का मौसम आ गया है तो फूल भी खिल उठे हैं। इसी तरह से हर साल मैं यहाँ से फ्लावर्स के पौधे जो हैं वो लेकर जाता हूँ और अपने घर के साथ लगाते हैं। वो खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करते हैं। नर्सरी लगाए हुए हैं, यहाँ लोग आते हैं मौसम बहार में, हर साल फूल ले जाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। मौसम बहार में हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा है। बहार के मौसम में परिंदे चहचहा रहे हैं। इस मौसम में खूबसूरत फूलों को देखने वाले भी फितरत की रंगीनियों में खो जाते हैं। बहार में फूल खिलने और दरख्तों पर नई कोंपलें निकलने से हर तरफ रंग ही रंग नजर आते हैं, जो इंसानी सेहत पर मस्बत असर डाल रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, रोही, दायरा दीन पनाह। मुल्तान में कट फ्लावर गुले गुलाल की फसल तैयार है। रंग बिरंगे फूलों ने मौसम बहार का मंजर दिलकश बना दिया। अक्टूबर में लगाए गए बीजों से खूबसूरत फूल खिल उठे। मुल्तान में कट फ्लावर गुले गलाइल की फसल तैयार हो गई। खेतों में खिले गुले गलाइल के रंग बिरंगे फूलों ने मौसम बहार को मजीद खूबसूरत बना दिया। अक्टूबर में लगाए गए बीजों से खूबसूरत फूल खिल गए हैं। 1 एकड़ में 60,000 गुले गलाइल के बीज लगाए जाते हैं। जनूबी पंजाब में 5 मुख्तलिफ रंगों वाले गुले गलाइल की काश्त होती है और 1 एकड़ में तकरीबन 50,000 जो है इसके पौधे लगते हैं और तकरीबन ये मार्च के स्टार्ट में जो है ना वो हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाता है। और जो मार्केट इसका पोटेंशियल है तकरीबन जो है वो 8 से 10-15 रुपए की एक स्टिक जो है वो फरोख्त होती है। डिप्टी डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर महकमा ज़राअत मोहम्मद ताहिर का कहना था कि काश्तकार गुले गलाइल की फसल से 4 माह में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फूल काटने के बाद जड़ के साथ 3 से 4 पत्ते छोड़ दिए जाएं ताकि बीज हासिल करने में आसानी रहे। एक एमर्जिंग फ्लावर है, ठीक है, ये तकरीबन मार्केट जो है इसने अब कैप्चर करना शुरू की है। पिछले 2 साल से हमने इसके ट्रायल लगाए हैं तो ये मुल्तान के कंडीशन में सक्सेसफुल हो गया है। इसका जो काश्त होती है वो अक्टूबर में इसकी नर्सरी रेज की जाती है और अक्टूबर एंड में जाके जो है इसकी जो है ना वो नर्सरी मुंतकिल कर दी जाती है खेत में। पौधे से पौधे 6 से 9 इंच जो है वो रखा जाता है। मार्केट में गुले गलाइल के एक फूल की कीमत 18 से 20 रुपए है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। शहर औली में मौसमी बहार के अनोखे रंग। बहार की आमद के साथ ही तबूबिये के दरख्तों पर गुलाबी फूल खिल उठे। तबूबिये के दरख्तों पर खिले गुलाबी फूलों ने मंजर दिलकश बना दिया। शहर औलिया में मौसम बहार के अनोखे रंग। तबूबिया के दरख्तों पर मौसम बहार में पत्ते झड़ने के बाद फूल खिल गए। तबूबिया के दरख्तों पर खिले गुलाबी फूलों ने मंजर दिलकश बना दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मोहम्मद फयाज का कहना था कि तबूबिया की खास बात यह है कि इस पर फूल तमाम पत्ते झड़ने के बाद निकलते हैं। तबूबिया के दरख्तों पर फूल फरवरी के आखिरी हफ्ते से मार्च तक खिलते हैं। ये जो आप पीछे फ्लावरिंग देख रहे हैं ये एक तबूबिया ट्री है, ये एक इम्पोर्टेड ट्री है। इस पे पिंक और येलो कलर के जो है ना फ्लावर्स आते हैं। ये सारे जो है ना पिंक कलर के लगे हुए हैं और ये हर साल जो स्प्रिंग का सीज़न जब आता है तो ये अपने सारे लीव जो हैं इनकी स्पेशलिटी है कि सारे लीव गिरा के और मुकम्मल तौर पे फूलों से है ना ढक जाते हैं ये सारे। ग्रीन बेल्ट्स पर खिले गुलाबी फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरी कहते हैं कि तबूबिया के खूबसूरत फूल देखकर मूड खुशगवार हो गया। तबूबिया के दरख्त जो से PHA मुल्तान ने लगाए हैं इस रोड के ऊपर, मौसम बहार की आमद है। देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है और PHA को चाहिए कि ऐसे इक़दामात और भी करे। और माशाल्लाह इसमें ये बाहर के मौसम में गुलाबी फूल इतना प्यारा लगा हुआ है माशाल्लाह कि लोग यहाँ पे रुक कर गाड़ी वाले अपनी अपनी मूवी बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं और माशाल्लाह ये मुल्तान की खूबसूरती के लिए जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। PHA की जानिब से ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में तबूबिया के दरख्त लगाए गए हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान।
कैनोला की फसल तैयार बर्दाश्त का आगाज हो गया। कैनोला के काश्तकारों ने ज्यादा और बेहतरीन पैदावार की उम्मीदें बांध लीं। कैनोला के काश्तकारों की मेहनत वसूली का वक्त आन पहुंचा। कैनोला की फसल पककर तैयार बर्दाश्त का आगाज हो गया। कैनोला के काश्तकारों ने ज्यादा और बेहतरीन पैदावार की उम्मीदें बांध ली है। मुल्तान डिवीजन में अक्टूबर की काश्ता कैनोला की फसल को बर्दाश्त किया जा रहा है। फसल को बर्दाश्त करके एक हफ्ते तक धूप में रखा जाता है। कैनोला के काश्तकारों का कहना है कि इस साल फसल बेहतर है क्योंकि बीमारी और कीड़ों का हमला कम हुआ है। 4 एकड़ उगाई है, ये मुनाफा बख्श फसल है और अब ये सुखाने के लिए कटाई हो रही है। सुखाने के लिए हफ्ता लगेगा, हफ्ते बाद ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी थ्रेसर करके इसे, तो ये केश करा सकते हैं। फिर जनूबी पंजाब में कैनोला की 20 से 25 मन फी एकड़ पैदावार हासिल होती है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में रमजान मुबारक के दौरान नाइट क्रिकेट की रौनकें जारी। शहरियों ने अपने मोहल्ले में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सजा लिए। मुल्तान में रमजान मुबारक के दौरान क्रिकेट मेला सज गया। चुंगी नंबर 14 के इलाके में शहरी अफ्तारी और तरावी से फरागत पाने के बाद क्रिकेट खेलने में मसरूफ। बागबान क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद आती है। सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी थे। इनका कहना था कि टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद अस्पतालों को वीरान करके गली मोहल्ले में क्रिकेट को आबाद करना है। और इनके जितने भी प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं, जो प्लेयर टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने इनके कप्तान से पता किया, वो कहते हैं कि इसी इलाके के सारे लड़के खेल रहे थे। 40-50 लड़के जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं वो इसी इलाके के हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि पूरे अहले मोहल्ला यहाँ पर आया हुआ। मैं पूरे अहले मोहल्ला को भी दिल्ली गहराई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल की तरफ मुबारकबाद पेश करता हूँ। बागबान क्रिकेट टूर्नामेंट में कुरैशी 11 और सुल्तान 11 के माबैन कांटे का मुकाबला हुआ। कुरैशी 11 ने बेहतरीन बल्लेबाजी के बाइस जीत का सहरा अपने सर सजा लिया। मैच हारने वाले सुल्तान 11 के प्लेयर्स का कहना था कि हार जीत जिंदगी का हिस्सा है। टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुखालिफ जो टीम थी वो काफ़ी सख्त थी, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने ज़्यादा मेहनत की उनकी बदौलत, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये मैच जीत पाए। और हमारे खिलाड़ियों ने, जावेद ने, अवैस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से हमने ये कम स्कोर डिफेंड किया। हार जीत खेल का हिस्सा है। बड़ा अच्छा मैच हुआ और बहुत मज़ा आया और आखिरी बॉल तक मैच गया। इस तरह की क्रिकेट होनी चाहिए, इस तरह के मैच होने चाहिए और इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे जीतने की। बागबान रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट मुनाकिद करने का मकसद नए टैलेंट को फरोग देने के साथ साथ जिस्मानी फिटनेस का हसूल भी था। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान।